Okay, as you know that whenever we open the software Pro E, we should set the working directory first. So is there any working directory already available? No sir, E में है? Pro is set. Which one? We should make a new one here. Okay, let us make a directory here. Okay. Now let us set this directory. E. Yes. So file new is very easy. Whenever you are supposed to make a new file, either it's a, you can say, assembly or manufacturing, whatever type of file you want to open, all those files will be opened from here, file and new. Here you can see all the options are available. After clicking on file new, you have to check on all these options. So this is file new, you already know this. हाँ जी, आगे क्या? Okay, let's say this is a new file and I am saving this here. Open means you are opening from here. File open and you are opening file from here. Okay. Next. Erase. Yes, this is important. Erase. when you will make assemblies and when your assemblies, you can say, consisting of more than 10 parts or more than 20 parts. So what happens once you open the assembly or once you open one assembly? Let's see what happens when I save it. I have saved it twice and thrice. Now file and erase and not displayed. This is open in your RAM. The command that I told you last time, that was delete. Okay, that was not this erase. That was delete. That is something else. Erase means that is partially opened in your RAM. And when you have opened one assembly, let's say it consists of 20 parts, and when you are just closing it and you are not erasing it afterwards, and then you are opening another assembly which is consisting of 20 different parts, and maybe 2 or 3 parts of that assembly, their names are matching with the 2-3 parts names of the first assembly, then there will be contradiction. And you will see that the software will not open that file properly. या कुछ delete कर देगा या error आ जाएगा, because the names are conflicting with the first assembly. So it is advised, whenever you are making an assembly and after you see that my work is completed, then you should you are just closing that window, and after that you should click on erase and not displayed. What will happen? The partially opened file will be deleted from the RAM. Okay, will be erased in fact. Deletion and addition ये तो आपकी डायरेक्टरी में होगा, ये बात हो रही है RAM से. तो जब आप उसको erase not displayed कर देंगे, and after this if you open your new assembly which is consisting of 20 different parts, you will be able to open that properly and easily. Is it clear? So this, no? I said that मिसाल के तौर पे आप एक असेंबली बनाते हैं. असेंबली जो है, जैसे कि नाम बता रहा है, ये कुछ पार्ट्स पे मुश्तमिल होगी. मिसाल के तौर पे ये एक मार्कर है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, इसकी निब है, ये इसकी मेन केसिंग है, ये पीछे इसकी कैप कह लें, या ये भी इसका जो ऊपर इसका जो हेड है. ठीक है, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं. इसी तरह आपको भी असेंबलीज जो दी जाएंगी, नॉट इवन इन असेंबलीज, बल्कि बाज़ पार्ट्स में भी ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. तो लेकिन असेंबलीज़ में ज़्यादा आता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए. वो कहते हैं हमने बिल्कुल ठीक बनाई थी, यहाँ ओपन नहीं हुई, या फिर जो है मैंने उसको अपने सिस्टम पे बनाया, मैं दोबारा ओपन करता हूँ तो मुझे मसला आ जाता है. तो आप ये करेंगे तो आपका ये सवाल खुद ब खुद हल हो जाएगा.
होता क्या है कि जब आप एक असेंबली ओपन करते हैं उसमें लेट से 2-3 पार्ट्स को आपने नाम दिए हुए हैं, वही बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर स्टूडेंट सेट कर देते हैं 2, 3, 4, PRT002, PRT003, PRT004। ओके, अब आपने प्रो ही जब क्लोज़ कर दिया है, आप कल नेक्स्ट डे बैठे हैं, आपने नई एक असेंबली बनाई है, उसमें भी अगेन आपने PRT0 हो सकता है आपने डायरेक्टरी भी चेंज कर दी है। जब डायरेक्टरी चेंज करेंगे तो फिर पार्ट सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर उसके अंदर अब आपने जब उसको 002 और सेम उसी नेम से आप सेव करेंगे। अब जब आप एक असेंबली ओपन करेंगे पहली जो भी, वो तो ठीक ओपन हो जाएगी। जब आप उसे क्लोज़ करेंगे तो उसकी वो जो सेम नेम से फाइल्स हैं वो पार्शली ओपन रहेंगी रैम में। उसको आपको चाहिए कि आप वहाँ से एरेज कर दें, डायरेक्टरी से नहीं बल्कि अपनी मेमोरी से उसको जो है आप एरेज करेंगे। जब आप उसको दूसरे असेंबली को फिर अगर खोलेंगे और एरेज नहीं किया तो उसके सेम नेम्स वाले पार्ट कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और आपकी फ़ाइल ठीक तरह ओपन नहीं होगी। तो जब आप एरेज कर देंगे तो दूसरी फाइल प्रॉपर्ली ओपन होगी। दिस इज़ अबाउट एरेज नॉट डिस्प्लेड। नॉट डिस्प्लेड मीन वंस यू हैव ओपन द असेंबली एंड देन यू हैव क्लोज्ड इट, तो इट इज़ नॉट डिस्प्लेड राइट नाउ, ठीक है, यू हैव क्लोज द विंडो। सो अब हम क्लिक करेंगे फाइल एरेज नॉट डिस्प्लेड पे, मीन्स कि मैंने जो अभी पहले खोली थी, जस्ट मैंने जो ओपन की थी उसको एरेज कर दे सारी को प्रॉपर्ली, वो है उसका मतलब। और एरेज करंट का मतलब ये है कि आपने फ़ाइल भी ओपन की हुई है, आप एक ही कमांड से चाह रहे हैं कि फ़ाइल यानी कि विंडो को मैं क्लोज़ भी कर दूं और साथ ही उसकी जो फ़ाइल ओपन रहेगी रैम में वो भी साथ ही उसकी एरेज हो जाए, तो वो आप एक ही ऑप्शन से उसको कर सकते हैं। बट इट इज़ एडवाइज टू यूज़ एरेज नॉट डिस्प्लेड ऑप्शन। Okay, here you see that if I open this file here, I have clicked on save and I am closing this. You see in erase and not displayed, this is still open. You click here, it is already in fact checked and the following objects will be removed from the session. Okay, अब यहाँ पे और कुछ नहीं है not displayed में भी, there is nothing now, ठीक है ना। तो अभी तो एक कंपोनेंट था, जब आपके 20 कंपोनेंट्स होंगे तो वो इस एक स्मॉल विंडो में भी 20 कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो आप एरेज कर दें। इसी तरह से जो करंट है उसका मतलब ये फाइल एरेज करंट। ओके, अब वो फाइल जो है वो आपकी एरेज भी हो गई है और वो इवन नॉट डिस्प्लेड में भी नहीं है। नेक्स्ट इज डिलीट ओल्ड वर्जन्स एंड डिलीट ऑल वर्जन्स, and this I have already told you. Like in this directory you see how many files are here. Okay. Once you click on the save button, one new file with a new name will be saved. Okay. तो वो आप देखें और उसकी वेटेज जो है उसका साइज जो है वो सेम ही होगा और वो सेव होता चला जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको पार्ट नेम सेम ही नज़र आएगा लेकिन वो 1, 2, 3 वर्जन की फॉर्म में जो है सेव होता चला जाएगा। यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो वो एक ही फाइल होगी लेकिन आपकी हार्ड ड्राइव पे लोड पड़ता चला जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप इसको ओपन करें और फाइल डिलीट और ओल्ड वर्जन्स का, ऑल वर्जन्स पे नहीं क्लिक करना आपने कभी भी भूल के भी। ऑल वर्जन्स मीन्स अगर डिलीटिंग ऑल वर्जन्स इट विल डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम योर डायरेक्टरी, you won't be able to retrieve that. Okay, it is just like you can, it is permanent, will be permanently deleted. Delete all versions. Okay, now you see your folder, there is only one file which was the latest and the last file. Okay, and here digit is only showing the version but here name is जो हमारे नाम रखा हुआ है वहाँ पे वही आएगा, वर्जन नेम नहीं आएगा। एंड ऑल वर्जन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, डिलीट ऑल वर्जन्स। यस, ये पूछेगा भी सही। अब आप इसको अपनी डायरेक्टरी में नहीं हासिल कर सकते दोबारा, ये परमानेंटली डिलीट होगा। और ये ना समझिए कि ये आपकी जो है उधर कहीं रिसाइकल बिन में आएगा, वहाँ से आप उसे रिट्रीव कर लेंगे। जी
इसके प्रीवियस सारे वर्जन डिलीट हो जाएंगे इस फाइल के जो फाइल आपने ओपन की होगी। लेकिन अगर आपने वो फाइल एक असेंबली फाइल है, आप असेंबली डिलीट करते हैं, देर आर चांसेस के फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी डिलीट हो जाएंगे। तो आप इस ऑल वर्जन्स को नहीं करना, सिर्फ आपको बताने के लिए डिलीट ऑल वर्जन्स की कमांड है। 3-4 नाम से फाइल बनेंगी ही नहीं, एक नाम से, एक ही नाम बार बार नहीं लेगा वो। अच्छा, एक और बात बता दें इनकी, इस सवाल से मुझे याद आया। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यू शुड नॉट ऐड स्पेस हेयर, ओके? इट विल नॉट, आपका पूरा नाम क्या है? इरफानुल हक। It will not accept the spaces between the names, okay? Either you have to add some character like आपकी होती है क्या, इसको हम कहते हैं अंडरस्कोर और डैश। ये आप बात आपको पता होनी चाहिए कि बाज़ औक़ात ये चीज़ जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप डैश ऐड कर लें, अंडरस्कोर ऐड कर लें, इसको आप ओके करें, देन इट विल बी ओके। ये आपको पता होना चाहिए। तो सेम नेम से आप फाइल जो है वो ओवरराइट करेंगे, या तो आप पिछली को रिप्लेस करें, तो अनलेस यू रिप्लेस द प्री ऑलरेडी अवेलेबल फाइल इट विल नॉट एक्सेप्टिंग द न्यू फाइल। नेक्स्ट क्या है? एक्सपोर्ट। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, यू शुड नो दिस। लेट मी मेक समथिंग बिफोर टेलिंग यू। कुछ ऐसे सिस्टम लगाया करें जिसमें कोई पार्ट बने पड़े हो पहले से, 2-3, बिल्कुल ब्लैंक मत लाया करें। Okay, let's say this is file with name Irfanul Haq. Now I am going to export this file. Okay, file, and you have to click on save a copy. Okay, file, save a copy, and there are different formats to save this file. There are different formats to save this file. Here the types are given, all these types, and most frequently universally used format is IGES. And what is it for? What are the words for which this is the acronym IGES? जी कौन बताएगा? IGES stands for, I told you this. I told you this in the first lab session, I think. It stands for, you should know this. Don't forget this. Okay, this word we will use again and again. This acronym will be frequently used. And when you will go to the industry, even there they are using this word, this acronym again and again. It stands for Initial Graphic Exchange Specification. Initial Graphics Exchange Specification. So you should not forget this. You should always remember this. Next time whenever I ask this, you should tell me the correct answer. Okay, so we are going to export this file, and the most frequently format in which the file is exported, or you can say whenever the data is exchanged between two countries, like let's say we say Honda Motors here in Pakistan, or Indus Motor Company, which is basically you can say a joint venture or a multinational company that gets data from Toyota Japan, and they send the data in this format, IGES format, because this is the format which provides the, you can say, it is the most flexible means by which data can be transferred, and there are more chances to retrieve or to open the data as it is, as the designer has designed. Okay,
लेकिन अगर दूसरे फॉर्मेट, इवन इसमें भी बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि आपके तमाम फीचर जो है वो रिट्रीव नहीं होते, कुछ फीचर जो है वो डिलीट हो जाते हैं, बाज़ सरफेस डिलीट हो जाते हैं, एजेस डिलीट हो जाते हैं ड्यूरिंग कन्वर्जन, और वो आपके लेट्स से कैटिया में बनी है फाइल, आप प्रोई में जब ओपन करेंगे तो आपको फिर वो थोड़ी सी उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको उसको फिनिशिंग देनी पड़ेगी, तब आप उस पर काम कर सकेंगे उस पर। एक और चीज़, या अच्छा चलें ये आपको यहीं से खुद ही क्लियर होगी। आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल in IGES format, okay, with the same name, but let me change the name, only Irfan, okay. I have used the format IGES with name Irfan, okay. I am going to click on OK. There are further 2-3 options, you should know all these options. Let me check one first. I have checked on the first, which is wireframe edges, okay, wireframe edges. I have clicked on OK. Now close it and open that IGES file. To open that you have to click on either IGES or all files. IGES, here you can see the IGES is available. For IGES, you open it, you see what is available, and you see that the imported feature is only one. यहाँ तो चले हमने बनाई एक एक्सट्रूजन थी ना, लेकिन एक्सट्रूजन के अंदर भी there were 3 planes which Pro by default gives, 1 coordinate system, 1 sketch feature जो एक rectangle थी, square था, and 1 was extrusion. तो 3 और 1 4 और 5 और 1 6 फीचर्स जो हैं उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन जब फाइल एक्सपोर्ट होती है इन IGES फॉर्मेट तो एक ही फाइल एक्सपोर्ट होती है, उसके फीचर साथ नहीं जाते. दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन से द डिज़ाइनर्स मेंटेन देयर सीक्रेसी फॉर देयर डिज़ाइंस, ओके, दे मेंटेन द सीक्रेसी. if someone does not want to transfer the, you can say, all the features, and he or she does not want that the next person can understand how he or she has designed the part, तो फिर ये वाला फॉर्मेट आप सिंपली यूज़ कर लें. बाज़ अगर आपने पूरे के पूरे फीचर भिजवाने हैं तो फीचर भी भिजवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हमने जितनी फाइल्स देखी हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, हमने इस तरह से कभी नहीं देखा कि एक फ़ाइल आई हो और वो फाइल पूरी की पूरी उसके सारे फीचर हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. दिस इज़ द वर्स्ट कंडीशन, दिस फर्स्ट ऑप्शन वायर फ्रेम एजेस. अब आप देखिए सिर्फ ये हमें मिला है, ये तो सिर्फ एक बॉक्स की तरह का बना हुआ है. अब अगर पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें समझ नहीं आती. अब इस पे काम आप कैसे करेंगे, आपको इस पे सरफेस लगाने पड़ेंगे, तमाम साइड्स पे सरफेस लगाएंगे और फिर आप उनको क्लोज करेंगे, मर्ज करेंगे और फाइनली आप उसको सॉलिडिफाई करेंगे. तो ये एक बड़ी लेंथी अप्रोच है और लेंथी वे है जो करना पड़ता है. टाइम मिला तो आपसे करवाएंगे. तो ये दिस इज़ द वर्स्ट ऑप्शन, ओके. अब नाउ लेट अस चेक द सेकंड ऑप्शन. Okay, surfaces. Next one is surfaces. All files कहाँ गए? All files आएंगे. Now again feature is only one. अब ये surface है, ये आपके पास solid नहीं है, ये आपके पास सरफेस फॉर्म में आया है. दिस इज़ नॉट अ सॉलिड. आप एक्सट्रूड करके कट करके देख सकते हैं कि ये सिर्फ सरफेस ही अंदर से हॉलो है. और तीसरा है आपके पास कि अगर आप उसे सॉलिड वे में अगर सेव करना चाहते हैं तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं. सॉलिड, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन विच IGES डाटा और द डिज़ाइन डाटा इज़ ट्रांसफर. लेकिन अगेन फीचर एक ही होगा. सॉलिड में ट्रांसफ़र करने का मकसद ये नहीं है कि फ़ीचर सारे के सारे उसके आ जाएंगे. यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5
6 फीचर है टोटल, और जब ये पार्ट और बढ़ता चला जाएगा तो मे भी आपके 100 फीचर्स हों, वो चाहे वो 1000 फीचर्स भी हों. When you are exporting it in IGES format, initial graphic exchange specification format, only one feature will be exported. वो सारे का सारा एक ही फाइल और एक ही एक्सपोर्ट फीचर होगा. सॉलिड में कर देंगे तो ये सॉलिड के साथ जो है वो सेव हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सपोर्ट द फाइल. ले आए आगे ले आए. तो मुझे लगा आप ऐसे ही करते हैं, नहीं पता था कि आप इंतजार कर क्या रेडी है. ड्रामा एक्स्ट्रा है. What is next? Rename. Sorry? Rename. Rename is very simple. You open this file and rename. It will say that the model had a name. Fanula, what new name you want to give? Just give a new name. Let's say this is the new name. On disk and in session both, okay, has been renamed with this. आप ओपन करें, दिस इज नाउ. इट्स वेरी सिंपल. बस यही है फाइल मैनेजमेंट. दैट्स ऑल अबाउट फाइल मैनेजमेंट. व्हाट इज नेक्स्ट? इंफॉर्मेशन फीचर. द इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर. ओके, info, and let me click on model first. info and model, ये बड़ी सिंपल सी बात है. इसका मतलब ये है कि ये आपको पूरे के पूरे मॉडल के बारे में पूरे फीचर की डिटेल बता देगा. मॉडल के तमाम फीचर की डिटेल इस ऑप्शन से आपको मिल जाएगी. इन्फो, एंड इफ़ यू क्लिक ऑन मॉडल, द कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल द फीचर्स एंड अदर पैरामीटर्स एज वेल इट विल बी शोइंग. लाइक इसमें कौन कौन से हैं आप देख लें. फीचर लिस्ट क्या है? एक राइट प्लेन है, एक टॉप प्लेन है, एक फ्रंट प्लेन है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कर्व है जो हमने स्क्वायर लगाया था, और एक प्रोट्रूजन है. यही 6 फीचर है ना जो हम बात कर रहे हैं. इस खास पार्ट की बात हो रही है जो पीछे हमने एक स्क्वायर ओपन किया हुआ है, 3D स्क्वायर. और ये तमाम के तमाम यहाँ पे दूसरे पैरामीटर्स भी आ जाएंगे जो आपकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं या और किस्म के पैरामीटर्स हैं. यूनिट्स आ जाएंगे. बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट जो हैं वो आपके इंच पाउंड सेकंड होते हैं प्रोई के. ये मैं आपको बताऊंगा आपने यूनिट कैसे सेट करनी है. ये बहुत एक अहम चीज़ है कि यूनिट आपने कैसे सेट करनी है. राइट नाउ वी हैव नॉट असाइंड एनी मटेरियल टू दिस ब्लॉक. ठीक है ना. अनलेस वी हैव असाइंड ए मटेरियल टू द पार्ट इट विल नॉट शो एनी मटेरियल प्रॉपर्टी. बट वंस वी विल असाइन द मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम और स्टील या कोई भी आप कहते हैं कास्ट आयरन, लिस्ट इसमें मौजूद है. वो आप जब उसको पर क्लिक कर देंगे असाइन हो जाएगा. डेंसिटी वंस यू डिफाइन फॉर द पार्ट फॉर दैट मटेरियल पर्टिकुलर, देन ऑल द रेस्ट ऑफ ऑल द पैरामीटर्स विल बी शोन. तो उसके आ जाएंगे. अभी सिर्फ यूनिट्स आ रहे हैं क्योंकि हमने इस तरह का इसमें असाइन नहीं किया. इसके बाद इन्फो एंड फीचर, ये भी यही है इनफैक्ट, लेकिन इसमें आप फीचर पे क्लिक कर देंगे. लेट से मैं कहता हूँ ये मैं स्केच पे क्लिक कर रहा हूँ. ओके, इट विल शो यू द पेरेंट एंड चिल्ड्रन. यहाँ पे जो यूज़ हो रही है बात, जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो पेरेंट और चिल्ड्रन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं. पेरेंट्स मीन्स जिस पे वो डिपेंडेंट है, ये वाला फीचर जिसको क्लिक किया है. और चिल्ड्रन मीन जो इस पे डिपेंडेंट है. चिल्ड्रन मीन जो इस पे डिपेंडेंट है. ठीक है जी. तो आप देखें ये पेरेंट इसके क्या है, राइट, टॉप एंड फ्रंट. यही 3 प्लेन्स पेरेंट है. अगर ये 3 प्लेन नहीं होंगे तो ये कर्व नहीं होगी, मौजूद नहीं होगी. इन्हीं की सिलेक्शन से हमने ये कर्व बनाई थी. और चिल्ड्रन क्या है, ये वाली एक्सट्रूजन. अगर ये कर्व नहीं होगी तो एक्सट्रूजन नहीं होगी. तो पेरेंट चिल्ड्रन रिले, ये आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी. ये जस्ट इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है इसमें. नेक्स्ट क्या है?
ये भी इसी के अंदर ही है, फीचर एंड फीचर लिस्ट। ये फीचर लिस्ट आ जाएगी सारी, वैसे ही जिस तरह से मॉडल है उसी तरह से फीचर लिस्ट भी है। नेक्स्ट मेयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यूजफुल, एनालिसिस एंड मेयर। जिस तरह से आप डायमेंशंस प्लेस करते हैं स्केचर में, एज को क्लिक करते हैं या एक एज से दूसरे एज तक क्लिक करते हैं और फिर साइड पे मिडल बटन से प्लेस करते हैं, सेम मेथड यहाँ पे होगा, लेकिन ये यहीं पे मेन विंडो में आप उसकी डायमेंशन जो है वो मेजर कर लेंगे, आपको स्केचर में जाने की ज़रूरत नहीं। और ये आपकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी इस तरह की कमांड शो करती हैं कि कमांड आपकी कितनी अच्छी कमांड है सॉफ्टवेयर में। अब एक बंदे से पूछा जाए बताओ भाई इसकी डायमेंशन क्या है, ठीक है ये मेन विंडो है, उससे मैं सवाल पूछता हूँ भाई बताओ इस एज से लेके इस एज तक क्या है डायमेंशन, अब वो उसमें मसला बन जाता है, उसके लिए मैं इसकी डायमेंशन कैसे बताऊँ, तो वो जनाब वो स्केच में जाना शुरू कर देता है। स्केचर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, यू शुड सिंपली यूज़ दिस कमांड एनालिसिस एंड मेयर एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस यूज़ करें, ये एज क्लिक करें, ये एज क्लिक करें, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया 10, ठीक है। ये क्लिक है रिफ्रेश का, इसको क्लिक करेंगे यही कमांड यहीं पे रीएक्टिव हो जाएगी। क्लिक फ्रॉम हेयर अप टिल हेयर, दिस डिस्टेंस इज 10। सो इन दिस वे यू कैन मेजर द डिस्टेंस इन द मेन विंडो। बाकी आप खुद ट्राई कर लें। लेंथ है ये एक को ही आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगी, एंगल है तो एंगुलर फीचर कोई होगा तो फिर वो आ जाएगा, डाया आ जाएगा, रेडियस जो भी आप चाहें। ये आपको बहरहाल ये कमांड पता होनी चाहिए सबको, एनालिसिस एंड मेजर। नेक्स्ट क्या है, मॉडल एनालिसिस। एनालिसिस और इसके अंदर आपके पास मॉडल है और मैश प्रॉपर्टीज। मॉडल एनालिसिस, मॉडल एंड मैश प्रॉपर्टीज। मसलन ये आप इस मॉडल के मुतालिक तमाम वो जो मैं आपको भी बात कर रहा था, अभी इसकी डेंसिटी डिफाइंड नहीं है, मैं इसकी डेंसिटी डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से 80 यूनिट्स क्या होंगे, किलोग्राम पर मीटर। यहाँ पे ये यूनिट्स नहीं है, पाउंड्स पर क्यूबिक इंच। तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे और अब आप इस पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू के लिए, ये तमाम इसके पैरामीटर्स जो है यहाँ से आ जाएंगे। वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, डेंसिटी, मैस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनर्शिया, सब चीज़ें यहाँ से जो जो भी आपको चाहिए, यू विल गेट ऑल दिस डिटेल ऑफ मैश प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम हियर। इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास जो है ये मॉडल एनालिसिस है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको। अभी भी मटेरियल नहीं डिफाइन किया था, वो जब उसकी बारी आएगी मैं फिर बताऊँ आगे क्या है। ब्लेंड कमांड आ गई है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो भी मैं आपको बता दूँ। इंफॉर्मेशन में ही है गालिबन, ऑडिट ट्रायल। यस, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन एंड ऑडिट ट्रायल। व्हेन यू क्लिक ऑन ऑडिट ट्रायल, ये आपको बताता है कि ये फ़ाइल, लेट से आपने अपना कोई सीक्रेट डाटा रखा हुआ है जो आप किसी दूसरी कंपनी को नहीं दिखाना चाहते या किसी दूसरे डिज़ाइनर को, तो ये आपको बताएगा कि ये आपकी इसकी डेट क्या थी और आपने लास्ट इसके अंदर मॉडिफिकेशन कब हुई, लास्ट मॉडिफिकेशन, लास्ट ये एक्सेसिबिलिटी कब हुई है और ये कब ओपन की गई है, ये सारी इसके अंदर जो है ये डिटेल है, डेट एंड टाइम। सो ये छोटे छोटे सवाल आपसे वाइवे में या कभी पूछे जा सकते हैं, आपको इन सब के जवाब आने चाहिए। तो भाई आपसे पूछा जाए बताएं भाई कौन सी कमांड है जो यूज़ की जाती है जिससे पता लग जाए कि ये कब बनाई गई फ़ाइल, तो आपको पता आना चाहिए कि इन्फो एंड ऑडिट ट्रायल विद दिस कमांड 2 स्टेप की कमांड है, सवाल में भी 5 नंबर का हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था जनरल किस्म का थोड़ा सा जो आपको मज़ीद बारीकियाँ पता होनी चाहिए। अब हम अपनी मेन कमांड में आ जाते हैं, जो हमारे पास, आपका नाम क्या है? blend. Blend command is used whenever 2 sections are to be joined at some distance. Like I can give you example of wind tunnel. You might have seen wind tunnel available in our fluid mechanics lab.
in that wind tunnel you might have noticed that the two ends are circular and the central portion is square, okay, and those circular portions are, you can say, with smooth edges, they are meeting with that central you can say rectangular portion or the square portion. So इस तरह की कोई चीज़ जो होगी वो हम कहेंगे. अब there are basically three sections, one circle, two circles at the ends and a square in the middle, and there are three sections. इसी तरह से हम काम करेंगे. इनके कुछ distances हैं between these sections, section 1 to section 2, then section 2 to section 3. These are distances, वो हम खुद set करेंगे values, and afterward they will be blended together. ठीक है. तो इसके अंदर one very important thing that you should always keep in mind whenever you are using this command blend is that number of divisions of all the sections should be same. So write it in bold letters. In bold you can say sentence has a bold sentence के number of divisions of all the sections should always be same whenever you are using this blend command. अब हम करके देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है. हमने नंबर ऑफ डिवीजन का कॉन्सेप्ट पहले भी मैंने आपको दिया था. दिस कमांड इज अवेलेबल इन इंसर्ट एंड ब्लेंड. अगेन देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, प्रोट्रूजन, थिन कट सरफेस. तो लेट्स से मैं थिन प्रोट्रूजन यूज़ कर रहा हूँ. भैया आप लोग नींद नहीं पूरी करके आते क्या? नींदें आ रही हैं सबको? फ्रेश होके आया करें. जो लोग सुबह नहा के आए हैं रेज देयर हैंड्स. अभी भी कुछ शगुफे हैं जो नहा के नहीं आए यार. चाहे दिसंबर का महीना हो, 21 दिसंबर हो, जगम जनवरी हो, मैं तो ज़रूर नहाता हूँ. उस अनलेस आई टेक अ बाथ आई डोंट फील माई सेल्फ फ्रेश. ठीक है ना. और रात की जो एक हीट सी चढ़ी होती है ना, वो सारी की सारी उतरनी चाहिए, तब आपको फ्रेश आप फील करते हैं. सुबह नहा के आया करें, ये तो बहुत ज़रूरी है. सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, आपको जो है ना 365 डेज जो है नहाना ज़रूर चाहिए सुबह मॉर्निंग में. फिर आप फ्रेश हो जाते हैं. ओके. ब्लेंड कमांड जैसे है इसको मैं भी एज इट इज़ यूज़ कर रहा हूँ. स्ट्रेट एजेस, ओके, स्ट्रेट एजेस डन. प्लेन सिलेक्शन, इट इज़ आस्किंग फॉर द प्लेन. Sketching plane is front, okay, and the second plane is, let's say, top. I have to make the first section a square, let's say. ये एरो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. यू कैन क्लिक ऑन द एरो, राइट क्लिक, एंड यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट पॉइंट. डायरेक्शन विल बी चेंज्ड. और इफ यू वांट दिस कॉर्नर एज द स्टार्ट पॉइंट, यू क्लिक हियर एंड you click on the start point, it will be the starting point. Okay, once you are finished with this first section, you right click and left click on the toggle section. How many number of divisions in this section are? There are 4 number of divisions. 4 edges है, 1 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसको. 4 number of divisions are there. Now I am making the second section, circle. How many number of divisions are there in a circle? जी, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड कैसे करेंगे? ये लास्ट कमांड से. इससे आप यहाँ पे क्लिक करें, 1 2 3 और 4. ये 4 नंबर्स ऑफ डिवीजन्स में हमने अब इसको डिवाइड कर दिया. कोशिश करें कि स्टार्टिंग पॉइंट के एरोज जो हैं वो सेम साइड पे आए. इधर आप क्लिक करके इसको स्टार्ट पॉइंट दे दें.
इसको आपने स्टार्ट पॉइंट दे दें और एरो की डायरेक्शन भी कोशिश करें कि आपकी सेम हो। दिस इज़ माई सेकेंड सेक्शन। इसको अगेन आप यूज़ करें टॉगल सेक्शन। अभी ये एक ही प्लेन पे बन रहे हैं, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द थर्ड सेक्शन। ओके, okay, these are three sections that I want to blend. Once you are finished with your sketcher, you click on OK. अभी ये मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। अभी आप ये ज़हन में रखें एरो बाहर की तरफ है, इसको ओके कर रहा हूँ। मैंने थिन प्रोट्रूजन पे क्लिक किया था स्टार्ट में, याद होगा आपको। अब ये विड्थ मांग रहा है उसकी जो थिकनेस है। इनफैक्ट मैं लेट से इसकी थिकनेस दे रहा हूँ 0.2। Now it is asking that what is the distance between first section and the second section. First section and second section, let's say this distance is 40. Second section and third section, this distance is 50. Okay. अभी ये तीसरे का एरो हमने सेट नहीं किया और आपको इसके अंदर चेंज फील आ रहा होगा कि पहले दो सेक्शन जो हैं वो अपने क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सेम थे, स्मूथ एजिस से मिल गए हैं जाके। लेकिन इसका एरो पॉइंट अगर यहाँ पे था तो इसका एरो पॉइंट इसी एज के सामने यहाँ होना चाहिए था, ये तब बिल्कुल स्मूथ जाके मिलता। इसका स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे एज पे था जिसकी वजह से वो यूँ ट्विस्ट होके जाके उस एज के ऊपर मिला है। तो ये आपको यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि एजेस जो है उनके होने से क्या होता है और स्ट्रेट और स्मूथ में क्या फ़र्क है वो भी यहाँ से देख लें। अच्छा, अब आपको कहा जाए कि भाई यहाँ पे जो है ना मसलन ओके, मैं आपको कहता हूँ भाई इस सेक्शन में चले जाएं, तो आपके लिए मसला हो जाएगा सेक्शन में कैसे जाना है। सिंपल इधर से एडिट डेफिनेशन करें और आप यहाँ सेक्शन पे आ जाएं। ये आप सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, इधर से टॉगल सेक्शन करें, जो वाले जिसको भी एक्टिवेट करना है ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट देना जी। ओके, एक और चीज़ समझ लें, स्ट्रेट की बजाय अगर स्मूथ करें तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ये अब यहाँ बहुत स्मूथ वे में मिल रहा है, अगरचे यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे उसके मुकाबले में इसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ये स्मूथ वे में मिलेगा जबकि वो जो है वो आपका शार्प एजिस बनाते हुए जो है वो मिलेगा। जो आपने पूछा है टॉगल सेक्शन का, सेक्शन में आ जाए, डबल क्लिक करें, ये वापस आ जाएगा स्केचर में। यहाँ पे अब आपने जो चीज़ जिस सेक्शन को सेट करना है, मसलन जो हाईलाइटेड है मुझे इसको नहीं सेट करना, आप राइट क्लिक करके नेक्स्ट पे आ जाए, फिर तीसरे को सेट करना है उस पे आ जाए, उस पे आ जाए। ठीक है, तो जो आपने इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यहाँ से ये देखनी है कि नंबर ऑफ डिवीजन्स शुड बी सेम। और जो फ्लिप की बात थी वो भी आप यहाँ से देख लें, फ्लिप का क्या मतलब था। मटेरियल साइड, मटेरियल साइड का मतलब ये है कि जो थिकनेस ऐड हुई है वो जो आपने सेक्शंस बनाए हैं उसके बाहर वाली साइड पे आपने करनी है। एरो अभी ये बता रहा है, फ्लिप करें अंदर वाली साइड पे, ओके कर दें, ये अंदर वाली साइड पे हो जाएगी आप, और बोथ भी हो सकती है, बोथ भी हो सकती है। हाफ 0.2 दी है ना हमने, 0.1 बाहर 0.2 बोथ कर दिया। अब ज़रा डिस्टेंस मेजर करके देख लेते हैं। एनालिसिस मेजर लेंथ 11.2, इज इट करेक्ट?
इस साइड से भी हाफ बायर गया, इस नीचे से भी हाफ बायर आया, तो 10 रियल था और 0.1 और 0.1 10.2। इस तरह से ये आपकी टोटल डायमेंशन है। इज इट क्लियर जी? दैट्स ऑल अबाउट ब्लेंड। और बाकी आप इसके जो वेज हैं अब वो आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। पूरी कमांड रिपीट कर दें यार, इतनी दफ़ा रिपीट ना करवाया करें, वो फिर आप और चीज़ें नहीं सीख सकेंगे। जी, किसने कहा रिपीट करें? नाम बताएं, अब समझ आएगी आपको। अब भी ना आई फिर मसला है। इंसर्ट ब्लेंड, चले प्रोट्रूजन ले लेते हैं अब। डन, स्मूथ एजेस डन, दिस इज द स्केचिंग प्लेन, ओके डिफॉल्ट ले लिया, ओके। चले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक सर्कल लगा लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ डिवीजन शुड बी सेम, 1 2 3 4। डिवाइड इसलिए करते हैं कि ये कंडीशन है इसकी। अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे तो वो उसके पास कोई सर्कल के एजेस ही नहीं बनेंगे। अब अगर मैं आपको यहाँ सर्कल लगा के ना दिखाता, रेक्टेंगल लगा देता, तो आपको नंबर ऑफ डिवीजन्स का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होना था, क्योंकि वो भी रेक्टेंगल है, वो भी नेक्स्ट भी रेक्टेंगल है, दोनों की 4-4 नंबर ऑफ डिवीजन्स है, वो आराम से उसके एजेस मिल जाने थे। सर्कल इसलिए लगाया है ताकि आपको ये पता लग जाए कि एज के साथ ही मिलता है, जो आपके पास एक कॉर्नर बन रहा है वही मिलेगा आगे जाके। ये मैंने आपको पहले बताई हुई है यार। उधर देखें, उधर मेरी तरफ नहीं, ठीक है। टॉगल सेक्शन और एक और बना दे रेक्टेंगल, जैसे वही सेक्शन मैंने दोबारा बना दिया, ठीक है जी। जय साहब, इसको आप ओके कर दें। चले, ये जो ले रहा है डिफॉल्ट, पता नहीं क्या बन गया, ठीक है। तो ये है आपके पास ब्लेंड कमांड। नेक्स्ट वन इज दी स्वेप्ट ब्लेंड। यस, स्वेप्ट ब्लेंड। अच्छा, एक चीज आपने ये देख ली यहाँ पे, ये जरा और से इसको देख लीजिएगा, इन दोनों कमांड्स की लिमिटेशंस थी। स्वीप में आपने देखा कि हमने एक ट्रेजेक्ट्री दी थी इन द लास्ट लेक्चर व्हेन वी स्टडीड दिस स्वीप कमांड, you studied there that we gave a trajectory first, okay, either we can draw the trajectory, sketch the trajectory, or we can select the trajectory. So we gave the trajectory first, and then at the end of the trajectory we made a section. Section can be a circular or it can be any shape. We made that section, and when we finished that command, the same section was swept throughout the trajectory. Same ने follow किया था trajectory को और आखिर तक आ गया। मतलब ये है कि ये जो है ये कांस्टेंट सेक्शन है, इसमें डिफरेंट सेक्शन नहीं है, ठीक हो गया ये बात। और जबकि इसके अंदर आपने क्या देखा है, ब्लेंड, ये इसकी लिमिटेशन हो गई सिर्फ स्वीप कमांड की। दूसरी ब्लेंड कमांड की लिमिटेशन आपने क्या देखी कि ये तमाम जो सेक्शंस हैं ये लीनियरली ब्लेंड हो रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ब्लेंड हो रहे हैं। कोई पाथ नहीं है इनका, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और ये आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। अब तीसरी जो बात है वो इन दोनों का मिक्सचर है, स्वेप्ट ब्लेंड, एज द नेम इंडिकेट्स कि यू विल प्रोवाइड द ट्रेजेक्ट्री, यू विल मेक 2 different sections at the 2 different ends of the trajectory, and they will be swept you can say along that trajectory, and they will be blended together. जी, आपका नाम क्या है? सॉरी, उल्फत, जबरदस्त सा नाम है भैया आपका।
डिफरेंट सा नाम। अच्छा जी, स्वेप्ट ब्लेंड अच्छा, इसके लिए ज़रूरी ये है, इट इज़ एडवाइज्ड टू मेक द ट्रेजेक्ट्री एंड द सेक्शंस फर्स्ट, टू मेक द ट्रेजेक्ट्री एंड द सेक्शंस फर्स्ट एंड देन अप्लाई दैट कमांड. So let us make the trajectory first. We are going in the sketcher. First let me make the trajectory. Let's say this is my trajectory. Okay. Again go in sketcher. अच्छा, यहाँ एक बात ज़रा समझने की है, यहाँ थोड़ा डेटम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ। जी जी, अगर तो मैं यहाँ क्लिक करके शुरू कर लूँ फिर तो काम बड़ा आसान है, यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ पे ही रोक दूँ उसे, फिर वो आपको समझ नहीं आएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखें, मैं इसको यहाँ नहीं क्लिक कर रहा, जिस जगह से मैंने स्टार्ट किया वहाँ कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता। और इधर भी कोई प्लेन एग्जिस्ट, यहाँ प्लेन एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे लिए, अच्छा चले एक साइड पे यही प्लेन ले लेते हैं, एक साइड ऊपर है एक साइड ऊपर नहीं है, ये मेरी ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है जी, जो साइड ऊपर थी भाई वो तो ठीक है, इस प्लेन के ऊपर ही आ रही है ना एंड उसका, डोंट यू थिंक कि ये यहीं पे आ रहा है, जहाँ ये ट्रेजेक्ट्री हमने ऐसे लगाई है। ये पॉइंट जहाँ मैंने एंड किया था, आपको पता है मैंने टॉप सेकंड सिलेक्शन थी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आया था, इसको जो एंड किया है दैट मीन्स कि ये एंड प्लेन टॉप में लाई कर रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो मैं सेक्शन बनाने लगा हूँ, देखिएगा आप, अगेन स्केच में और इस प्लेन पे मैं आ रहा हूँ। मैं ये यूज एज कमांड यूज करके ये ट्रेजेक्ट्री सिलेक्ट की है जो कि उस प्लेन पे बन रही है, और मैंने इसको यूज करते हुए ताकि मुझे एंड मिल जाए, उसका रेफरेंस भी लगा सकता था, एक पॉइंट लगा के एंड मिल गया। ये मुझे नहीं चाहिए, मैं वैसे उसका सेंटर निकालने के लिए ली थी। तो ये आपको एक तो ये पता लग गया है कि ये तो एग्जैक्टली उसके एंड के ऊपर सर्कल लग गया। क्लियर हो गई बात? इसको तो ओके कर दिया, तो एक सेक्शन तो बन गया सर्कुलर जो बिल्कुल उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब यहाँ ज़रा मसला है, इधर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ हमें चाहिए डाटा। यहाँ अब जब तक आप एक प्लेन नहीं लगाएंगे आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, प्लेन कैसे लगाएं? प्लेन किस चीज़ से पास करेगा, इसका एंड पॉइंट कैसे निकलेगा, उस प्लेन लगाने के लिए ज़रूरी है कि पहले पॉइंट लगाया जाए। तो ये एक दो कमांड्स आप डेटम की यहाँ से सीख जाएंगे, पॉइंट, और यहाँ आप पॉइंट उसके कॉर्नर पे लगा दें। ठीक है, ये सिंपल क्लिक किया, ओके, ये पॉइंट लग गया। दिस इज ऑल्सो अ डेटम, अ रेफरेंस। नाउ यू क्लिक ऑन द डेटम प्लेन, click on this point, that means it should pass through this point. Control press from your keyboard and then click on this plane to which it should be parallel. Now this plane is parallel to this plane but passing through this point. This is now our sketching plane. बात आप समझ गए? पिछला जो प्लेन था उसको तो मैंने बिल्कुल सेंटर पे खुद ही स्टॉप कर दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली टॉप प्लेन मेरा स्केचिंग प्लेन बन गया। लेकिन आपने जब ये नहीं करना और फ्री जगह से स्टार्ट किया किसी जगह से, तो फिर आपको वहाँ पे स्केचिंग प्लेन लगाना है जिस पे आप स्केच कर सकें। अदरवाइज इस पे स्केच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पे स्केच करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक स्वीप होगा, ये इतनी ट्रेजेक्ट्री खाली रह जाएगी। लेकिन आपने एंड पॉइंट्स अगर फाइनल कर लिए हैं और उन्हीं एंड पॉइंट से आप दो सेक्शंस को ला के स्वीप करना चाहते हैं, तो फिर आपको उन एंड पॉइंट्स पे स्केचिंग प्लेन्स होना मस्ट है। अब आप इस पे स्केचिंग कर लें, दोबारा स्केच में आ जाए। अच्छा, अभी आपको जब स्केच पे क्लिक करना है तो कोशिश करिए कोई चीज़ सिलेक्टेड ना हो। अब ये देखें, जैसे अगर ये प्लेन सिलेक्टेड है ना मेरा,
अब यही कंडीशन है, मैं स्केच पे क्लिक करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेता है प्लेन को, रेड वाले को एज ए स्केचिंग प्लेन, जबकि मुझे वो चाहिए ही नहीं। तो स्केच और ये वाला प्लेन, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। Now this point is available, okay? You may use this use edge command and click here, and it can show you the end point of that. Afterwards you may delete that. There is another option, sketch and references, and you click on this point. This is अब आपका कर्सर यहाँ पे भी आके रुकेगा, रेफरेंस लग गया ना, एक तो इस लाइन पे भी रुक रहा है, ये भी रेफरेंस एक्सिस है, और ये पॉइंट भी रेफरेंस है, इस पे भी आके आप रुकेगा। क्लियर हो गया? एक हमने मिस्टेक की है, वो आप बताएं क्या हो सकती है। ये स्वेप्ट ब्लेंड कमांड नहीं लगेगी इसमें। जी, नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ ब्लेंड भी आ रहा है, तो ब्लेंड की कंडीशन जो होती है वो होती है डिवीजन की। तो इसको आप ज़रा डिवाइड कर लें पहले, इस सेक्शन को, वो तो ठीक है, इसको डिवाइड कर लें। अब ठीक हो गया। अच्छा, once you are finished with your trajectory and the two sections, you can use this command, insert swept blend. Insert and swept blend, and I am clicking on the solid references, click on this references, ये आपका खुल जाएगा यहाँ से। Trajectory, it is asking select item in trajectory, select this trajectory, this is now the trajectory, okay? In the second option we have to select the sections, sketched sections or the selected। तो आपको मैंने ये बताया सिलेक्टेड कर लें, वो इजी हो जाएगा। ज़रा सिलेक्ट कर लें, एक सेक्शन जो है वो ये है, सेक्शन 1 हो गया, फिर इंसर्ट पे क्लिक करें। अब सेक्शन 2 जो है वो ये है। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास इसने इस कमांड को पूरा कर दिया। Is it clear? So this is the use of swept blend command. जी, नेक्स्ट क्या है? हेलिकल स्वीप, very useful command. We can use it in two different ways. जी, आपका नाम क्या? आप भी इरफान है? कितने इरफान है इस क्लास में? कहते हैं भाई इरफान नाम की जो है ना पहले फाइल एग्जिस्ट करती है, तो ये इसलिए वो उस नाम से वो कहता है मैं। आपका नाम क्या? ज़ुबैर हो गया। शहबाज साहब, आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल भी 2 हैं। चलिए, तो फिर आसानी हो गई। चलिए, अभी हम यूज़ करने लगे हेलिकल स्वीप। हेलिकल स्वीप का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि एक हेलिक्स बनेगा यूँ, ठीक है, और एक एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन होगा, एक साइड पे सेक्शन होगा एक खास डिस्टेंस पे, और वो उस एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन के अबाउट जहाँ तक आपने ट्रेजेक्ट्री दी है उसके एंड पॉइंट तक उसको एक हेलिकल वे में उसको स्वीप करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? एक आपके पास है सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री, एक है आपके पास एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन, और तीसरा है सेक्शन। ये तीनों चीज़ें इसमें चाहिए, उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं वी कैन यूज़ दिस कमांड इन 2 different ways, to make a spring or to make a thread। थ्रेड के लिए भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। आपके पास लेट से एक सॉलिड राउंड बार है जिसके ऊपर एक आप बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर आप जो एक थ्रेड लगाना चाह रहे हैं, थ्रेड भी वही फॉर्म बनती है, हेलिकल शेप ही होगी। तो उसमें आप इधर आपने थ्रेड लगानी है जिसमें कट लगेगा, और या आपने एक स्प्रिंग बनाना है सॉलिड, उसमें भी ये यूज़ होगा।
तो पहले हम स्प्रिंग बनाते हैं इससे। इंसर्ट, हेलिकल स्वीप, प्रोट्रूजन। थिन प्रोट्रूजन ले लेते हैं, ज़रा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो तो इजी सी है। थिन प्रोट्रूजन अभी कांस्टेंट के साथ कर रहा हो। वेरिएबल, द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल मींस कि आपने कांस्टेंट से मुराद ये है कि पिच कांस्टेंट रहेगी, पिच कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल से मुराद ये है कि यू कैन वेरी द पिच, यू कैन वेरी द पिच। कांस्टेंट से कर रहा हूं पहले। ओके, प्लेन सिलेक्शन, दिस इज द स्केचिंग प्लेन। ओके, sketch the trajectory, and an axis of orientation. Okay, pitch value, it is asking the pitch value. I am giving the pitch value 2. ये एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन वाली जगह है और ये आपके पास जो है ये आपका ट्रेजेक्ट्री का स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रही है। ये सॉलिड लाइन, आगे डैश लाइन जा रही है, इधर बनाना है सेक्शन। The dia of this circle should of course be less than the pitch value, otherwise तो आपस में घुस जाएंगे ना एक दूसरे के अंदर। ये आपको थिकनेस साइड दे रहा है, जहाँ थिन सेक्शन लिया ना मैंने। ये आप पहले देख लें कि हमने, ये आपके पास थिकनेस भी आ गई है। वी गेव एन एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन, एक ट्रेजेक्ट्री लगाई थी जो ऑफ कोर्स यहाँ से शुरू करके और इस एंड तक थी। अच्छा, आज मैं आपको ये भी सिखाता हूँ, कोई टाइम मिलता है। एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन वाज ऑन दिस सेंट्रल लाइन, और एक साइड पे हमने सेक्शन बनाया, और जो ट्रेजेक्ट्री है वो ट्रेजेक्ट्री कहाँ पे है, इनफैक्ट यहाँ से शुरू हो रही थी ट्रेजेक्ट्री और यहाँ तक थी। बात समझ आ गई? साइड पे ट्रेजेक्ट्री थी, उसके ऊपर सेक्शन बनाए, और ये एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन। दोबारा मैं बना देता हूँ इसको। ये आप खुद ही समझिएगा, मेरी तबीयत भी सही नहीं है। ओके, ट्रेजेक्ट्री एंड एन एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन, बड़ी सिंपल सी बात है, दो चीज़ें बनाई हैं। ओके कर दें। पिच वैल्यू मांग रहा है, पिच वैल्यू जनाब मैं दे रहा हूँ 3, चलिए 5 ही दे देते हैं। पिच क्या होती है स्प्रिंग के केस में? जो आपके कॉइल के
दो कंजेक्टिव आपके पास जो बन रहे हैं रिंग, उनके अंदर जो कंजेक्टिव पॉइंट्स पे डिस्टेंस होगा वो आपके पास पिच होगी। अच्छा, मैं अब सर्कुलर नहीं बना रहा, रेक्टेंगुलर भी होते हैं स्प्रिंग। ये भी ज़रूरी नहीं है, ये आप छोटी छोटी बातें आप खुद एक्सप्लोर करें। इधर भी बना देंगे तो हो जाएगा, इधर बना दें सेक्शन, इधर बना दें, इधर इधर बेटर ये सेंटर में बनाएं। वो हो सकते हैं चांसेस, वो फिर आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ट्रेजेक्ट्री से आप थोड़ा हट के बना रहे हैं, वो बात तो वही लेगा उसके अबाउट, लेकिन वो आपको थोड़ा ध्यान रखना, उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा है। बेटर टू यूज़ द सेंटर पॉइंट, सेंटर को लेके वहाँ आप सेक्शन बनाएं। ठीक है, हो गई क्लियर बात पीछे सब? चलो अब हम, ये तो हो गया एक वे, दूसरे वे में अब हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा चले, इसी को मैं चेंज करता हूँ, कांस्टेंट पिच को मैं चेंज कर रहा हूँ वेरिएबल पिच से। ये यहाँ पे नहीं होगी, इसको नया सेक्शन में पॉइंट दिया नहीं ना सेंटर में, आपको समझ नहीं लगा। मैं नए सिरे से ये कमांड बना रहा हूँ, ये आप देखें। सरफे वेरिएबल, ओके, वेरिएबल में देखें क्या होता है।